Alright guys, I'll teach you this easiest trading model, BRK, or I'll add my observation of the market onto it. मैं कैसे BRK को ट्रेड करता हूँ और वो कैसे बाकियों से अलग है और वो कैसे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में और आपके मॉडल में काफ़ी परसेंटेज इंक्रीज कर सकता है और एक एक्यूरेसी और एक बेटर आरआर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए पूरा वीडियो बिल्कुल देखिए and I'm going to be teaching you now. Alright guys, so this is BRK. So BRK क्या होते हैं? First we need to understand that BRK basically हमारे failed order blocks होते हैं. For instance, let's say the market is making higher high, higher low, right? Now market is making printing higher high, higher low. Then suddenly if market prints a change in character which disrupts the last low, then this forms this last sell to buy candle. In this case it's buy to sell candle. That usually means that there is a change or shift in the market structure. So if there is a shift in the market structure, then this is supposed to be your order block, right? But in many instances, whenever price is traveling back to it for mitigation के लिए जब प्राइस वापस आ रहा है, प्राइस ज़्यादातर आप क्या अपेक्षा करते हो प्राइस से कि प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे की ओर जाएगा सेल साइड को लेने के लिए, विच इज़ फेयर इनफ. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे कुछ सिनेरियोज भी होते हैं जहाँ पे प्राइस इसको वायलेट कर देता है आपके ऑर्डर ब्लॉक को. एंड BRK ब्रेकअप ब्लॉक्स आर दी ऑर्डर ब्लॉक्स विच गेट्स वायलेटेड. ऑर्डर ब्लॉक्स वो वाले ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं BRK जो वायलेट हो जाते हैं, जो कि सस्टेन नहीं कर पाते, जिनको रिस्पेक्ट इज्जत नहीं मिल पाती. अब नाउ व्हेनेवर previously this BRK was working as resistance, now this BRK is going to work as your support area. Alright, from this particular area you can expect the market to reverse back. Alright, but इसके ही काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, 3-4 वेरिएशंस हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ और काफ़ी थोड़े से यूनिक हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल टच है उनके साथ. लेकिन आप कैसे देख सकते हो उन सबको और कैसे that can help your strategy. For instance, let's see that market is trending up in this way. Okay, market is going up, right? Market is printing higher highs, high lows. This is the fundamental of that market is uptrending, market is going up, right? Now then suddenly there is a shift in the market structure and the market is booming to the downside. Market is plunging to the downside. Market नीचे गिर रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से. Now suddenly, obviously this is a buy to sell scenario, a clear buy to sell scenario where price was actually pumping up then suddenly plunging. So understanding that, people are expecting, अपेक्षा कर रहे हैं लोग कि यहाँ से price नीचे की ओर जाएगा, which is fair enough, and I agree that is an order block, that's how it's supposed to behave. But in many cases, order blocks do not sustain. In those cases, this is going to work as, like I told you guys, BRK. So BRK को हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. अब इसकी वेरिएशंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे. वेरिएशंस इसके कुछ ऐसे, फॉर इंस्टेंस अगर BRK यहाँ से हमारा BRK इसको वायलेट करता है, नाउ वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द सेम BRK as our, using the same order block as our BRK. It's just synonyms. That's why it's just always be like very common to each other. But think in this way. Now that same order block is going to be shifted to BRK. Now you can easily flip this up. Flip the script now. Now understand that market is going to come back in this way, alright? So now that is called delivery. Now we know that every high low is some form of liquidity. As let's say if I want to buy something, then obviously I am becoming a participant in the market. मैं मार्केट में निवेश कर रहा हूँ, मैं मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, चाहे मेरी कीमत या वैल्यू कितनी भी कम हो, आप किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हो, राइट? सो दैट इफ अ लो इज फॉर्म्ड, राइट, इफ अ लो इज फॉर्म्ड देन ऑब्वियसली समवन बॉट देयर, राइट? ऑलराइट, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, मार्केट हैज़ टू वर्क इन अ बैलेंस. Market has to work in a balance. So since this order block which was supposed to be delivered, जो शब्द मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, which is very important, delivery, जो डिलीवरी यहाँ पे पेंडिंग है. फॉर इंस्टेंस अगर एक वर्कर है, उसको किसी टास्क के लिए कहीं जाना है, प्राइस रैंडम नहीं है, प्राइस इज डिलीवरिंग समवेयर,
always price is delivering somewhere. Either it can be data highs, it can be previous week's highs, monthly highs, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिलीवरी हमेशा होती है. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है फॉर इंस्टेंस, जो कि अब BRK बन चुका है. अब यहाँ पे एक इंटेंशनल इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है विच इज इन द फॉर्म ऑफ लो. एवरी हाई लो इज लिक्विडिटी, और उसके आसपास अगर आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, देन दैट इंटरनल लो वर्क्स एज अ लिक्विडिटी पॉइंट, जिसको मार्केट मैनिपुलेट करके डिलीवरी देती है. इसके काफ़ी एग्जाम्पल आज मैं आपको दिखाऊंगा. इट विल बी अ फैंटास्टिक सेशन. देन दिस फॉर्म इज अ दिस इज अ ब्यूटिफुल वेरिएशन ऑफ ब्रेकअप ब्लॉक, जो कि बहुत अनकॉमन है, काफ़ी लोग नहीं जानते इसके बारे में. दिस इज गुड शिट. ऑलराइट, तो ये जो लो क्रिएट हुआ था हमारा BRK से पहले, दैट इज गोइंग टू वर्क एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी. परफेक्ट सेटअप. कितनी बार देखिएगा, बिना हिचक के, बिना हेजिटेशन के करके देखिए, सेम एनोटेशन के साथ जैसे मैंने बनाया वैसे ही पिक्चराइज करें और करके देखिए. ना चले तो मेरा ही ID है, आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल टीच यू. ठीक है. सेकेंड वेरिएशन क्या है? व्हेनेवर प्राइस इज ब्रेकिंग दी ऑर्डर ब्लॉक, देयर शुड बी इम्बैलेंस, देयर शुड बी प्रेशर, देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट. फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा लोग आ जाए तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से होगी कि बहुत ज़्यादा आपदा आ जाएगी, राइट. अगर फॉर इंस्टेंस अगर एक जगह, एक छोटी सी जगह पे आप बहुत सारा पानी गिर दो, क्या होगा? तो जो अंदर का पानी है वो बाहर आ जाएगा, पानी डिस्प्लेस हो जाएगा. तो whenever there is a big order coming into the market, कभी भी एक बड़ा ऑर्डर बाजार में आता है तो the whole premise की एक बड़ा ऑर्डर है, it has to displace, it has to go from point A to point B, right. तो point A से point B पे ऑर्डर गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होनी ज़रूरी है. अब डिस्प्लेसमेंट के दौरान यहाँ पे गैप होना चाहिए. तो गैप के भी तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके के गैप्स होते हैं. पहला गैप, ये मेरी कैंडल है 1, ये मेरी दूसरी कैंडल है, ये मेरी तीसरी कैंडल है. इन तीन कैंडल्स के बीच में गैप होना चाहिए. गैप के तीन तरीके होते हैं, उनमें से मैं एक बता रहा हूँ, फिर दूसरे बताऊंगा. और ये मेरी एक कैंडल है, और ये मेरी एक कैंडल है, और ये मेरी एक कैंडल है. अब इनके बीच, इन विक से लेके विक के बीच का जो गैप होता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं. ब्रेक करते समय फेयर वैल्यू गैप है तो ये A+ सेटअप है. दिस इज एन अमेजिंग फिनोमिनल सेटअप. इसके एग्जांपल्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. एंड लेट्स रिमूव दिस. ठीक है. नाउ वन मोर, एंड देयर इज अनदर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल गैप. कभी भी मार्केट में कोई न्यूज़ आता है, कुछ आता है, जैसे कि मार्केट बंद हो गई 4 बजे, 4:30 बजे न्यूज़ आई, तो अगले दिन मार्केट क्या करेगी? गैप अप करेगी. अच्छी न्यूज़ है तो गैप अप, बुरी न्यूज़ है तो गैप डाउन. ठीक है. अब यहाँ पे ये क्या है? ये गैप फिल हो गया. यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, एक वॉइड है. और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मार्केट इम्बैलेंसेस को फिल करके रीबैलेंस करती है. ठीक है. मार्केट का नेचर बहुत बैलेंसिंग नेचर है. ठीक है. जो इम्बैलेंसेस है उनको रीबैलेंस किया जाएगा. तो whenever, if this is your BRK for instance, and this is your physical gap, market will come back because market has a duty to fill the void. void को fill करने बाजार आएगा और आपका BRK यहाँ पे mitigate भी हो जाएगा, which is a phenomenal case. This is a beautiful setup. Alright. On top of all this, let's end with this. For instance, market is falling, and you see SMT. तो दो लोग हैं जिनको साथ में जाना है, और साथ में जाने वाले लोग जो कायदे से साथ में जाने चाहिए, जो कायदे आइडियली एक साथ चलने चाहिए, अगर ये वो अलग अलग चलने लग जाए, अलग अलग, सोना ऊपर जाता है तो चांदी को भी ऊपर जाना चाहिए. ठीक है. अगर सोना ऊपर जाता है तो चांदी को भी ऊपर जाना चाहिए. लेकिन अगर वो अलग चले, दैट इज कॉल्ड SMT, that is called divergence. Whenever they are going in a different direction, there are various divergence. There is RSI, there is volume divergence. This is called ये पेयर्स के बिटवीन है. ठीक है. अगर सोना ऊपर जा रहा है तो चांदी को भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी अक्सर ऐसा होता है कि सोना नीचे जा रहा है और चांदी ऊपर जा रही है. दिस इज कॉल्ड SMT. अब SMT मैं हर जगह देख सकता हूँ, लेकिन मैं हर जगह देखना नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे मेरा रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है,
मुझे वहाँ SMT दिखे, अगर मुझे वहाँ SMT दिखती है तो दैट्स अ फिनोमिनल केस. अगर मुझे यहाँ SMT दिखती तो दैट्स द केस that price can potential reverse. So these are the cases which you need to focus. Now let's get back on the charts. Let's get back on the charts and see what we can achieve from today's session. So here, this beautiful setups, you're gonna love the session today. So like I said, buy to sell. So in the cases here, we can see we're gonna use replay option here to teach you guys for today. We can do live also, don't worry. We don't mind all that. We can, let's say, we can clearly see a buy candle. A buy candle तो मुझे दिख रहा है. On top of it, what else I can see? I can see a buy candle which potentially change the direction of the whole trend. Trend का पूरा direction is एक buy candle ने change कर दिया. Buy to sell candle ने basically that was the culprit candle. अब culprit candle है तो basically वो एक हमारा order block है. अब ऑर्डर ब्लॉक है तो हमारी अपेक्षा, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सेशन में पढ़ा था कि हमारी अपेक्षा है कि प्राइस यहाँ से पलटना चाहिए. लेकिन अक्सर क्या होता है, प्राइस इसे ब्रीच कर देता है तो ये हमारा एक सपोर्ट बन जाएगी. यहाँ से हमारा विपरीत हो जाएगा जो भी हमारा सोचना था. अब यहाँ से हम देख सकते हैं, मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी कि अगर ब्रेक करते समय, एक ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करते समय, इफ देर आर व्हाट, गेस कीजिए, इफ देर आर व्हाट, yeah, guess, you cannot guess na. If there are gaps at the time of breaching the order block, you can see the gap, you can see the gap here, फेयर वाले gap. Like I said, 3 कैंडल के बीच में विक से लेके विक तक का जो गैप होता है, that's the gap you need to map out. 1 2 3, ठीक है. We will keep it very simple, सिंपलिस्टिक फॉर्मेट में अगर समझ पाएँ तो उससे बेहतर कुछ नहीं. आप देख सकते हो मार्केट ने गैप को फिल करा, वायलेट नहीं करा, ऑर्डर ब्लॉक था वो BRK बन गया. अब यहाँ पे आपका जो भी प्रेमिस था, जो भी आपका कंसेप्ट था, जो भी आपकी बायस थी, वो यहाँ पे बदल गई. आप यहाँ पे सिंपली, अब आई जस्ट रन द प्राइस, यू कैन सी प्राइस इज गोइंग क्रेजी, राइट. नाउ हम कुछ नहीं बदलेंगे, जो है उसको उसी रुचि से देखेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से देखेंगे. You can see you could have made crazy fucking money with this trade, like easy fucking money. I'm telling you, bro, this is crazy shit. $160, $160 move on gold. उसके 5 से गुना कर दो. That's my size, okay? And don't worry about how much other person is making or how much you are making right now, because current situation is not the final situation. You can always do better. Alright, just focus right now on the screen. You can see price was smoothly going up. There is a big sell candle. What do you mean by that? You can see price is going up, then boom, a displacement to the downside. That means there is a buy to sell scenario. In a way, that is the order block here. Now we just want to wait. We want to see what's going to happen next. We can see price is pulling down crazy. प्राइस अचानक से पलट गया, नीचे आ गया, बाय टू सेल बताया तो. सिमिलरली नाउ सी दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक. नाउ ऑल वी वांट, आइदर ऑर्डर ब्लॉक को इज्जत मिले, नहीं मिली तो BRK है. 2 सिनेरियोज है. कंफ्यूजन का कोई स्टेज नहीं है, कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं है हमारे साथ. सिंपल चेन इन स्ट्रक्चर, बाय टू सेल कैंडल, दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक. आइदर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी. नहीं मिलेगी तो भी काम है, मिलेगी तो भी काम है. दोनों जगह हमारे पास काम है, टेंशन की बात ही नहीं. Now price is consolidating. Let it be patience. Now coming back to the same thing. What did I tell you? Price break करते वक्त we need imbalance, we need displacement, we need power move. We do not want weak move. Same thing, same fucking shit. Same shit, bro. Same shit. Now 1 2 3 candles. Now you simply just mark wick to wick. You just wait for the delivery back into the order blocks. Delivery बहुत अच्छे से हमने इस शब्द पे काम किया था. Let it come, nothing to worry. You are a peaceful trader, you are a calm trader, you are a reasonable trader who knows his shit, who knows how to work. A very phenomenal trader. You have to have patience. Now that is your delivery. That's a beautiful fucking delivery. You buy that. Now you wait. You see that? You see that, bro? In
I want you to see something. दोनों ट्रेड्स में कुछ डिफरेंस नहीं है. इसे सिस्टम कहते हैं. वी हैव अ सिस्टम, वी हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच. अगर प्राइस कहीं भी जाए, इधर जाए उधर जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है. मुझे मतलब है जब वो इधर आए, मेरे पॉइंट पे आए, तब मुझे काम करना है. अदरवाइज आई विल नॉट वर्क. Alright guys, amazing session. So I do not make much YouTube. I do not know how to talk to camera. So just learning all that shit, learning how to edit and all. So I'll try to like keep up with like making more videos and shit. But if you liked it, yeah, hope you liked it, then obviously I'll upload more, interact, engage with it. Same setup, same fucking setup, same fucking setup. How many times? Same fucking setup. Dude, this is fucking great shit, bro. You can see, you can bot easy, bro. I just told you how it should be. If you do it in the same way, you're going to get same results. Alright guys, that's it for today. I will be posting more shit, more more stuff. And I believe you, if you like the video, just engage with it. Let me know your feedback, let me know your struggles. Maybe I'll be able to like make a video on it, and let's see. Thank you.